Good morning to all the students. Welcome to the physics class. Students, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, there are two types of spherical lenses. One is convex and one is concave. Now our today's topic is some of the definitions like optical focus, principal focus, axis, like this. So first of all, what is optical focus? This is basically the center point of lens. So if you see here, students, C point is the optical focus. After that, the line passing through the optical focus is called principal axis. So this is the line here. This is the principal axis. This line represents principal axis. What is focus? Focus is the point where rays converge after refraction through the lens. So if there are number of parallel rays coming after refraction, they meet at one point. This point is called focus. Rules for drawing the ray diagram. So there are rules. First rule is any ray parallel to the principal axis after passing through the passing through the lens, means after refraction it pass through the focus. Suppose this is lens and this is principal axis, and line which is parallel to the principal axis, after refraction it will pass through the focus. This is also parallel line, after refraction it will pass through the focus. This is our first rule. Second rule, any ray of light passing through the focus becomes parallel. Suppose this is lens, this is principal focus, this is the focus. Now any line passing through the focus. So suppose this is the line passing through the focus. After refraction it will become parallel. Okay, this is second rule. Third rule, a ray of light passing through the optical center goes straight. Now students, this is our optical center. Any ray of light passing through this will not bend. So these three rules you have to remember for drawing the diagrams. Next we have so these are some images of rules. First is this: any line parallel after refraction will pass through the focus. Any line passing through focus will become parallel. This is second rule. Third rule, any line passing through the center will go straight. So images, now we will form the images. Now first case is when the object between O and F. So what is O? O means optical center and F means focus. So object is placed between, this is F, this is C. So in between we placed the object. So we will make the image. So we will apply here rules. So firstly we will apply first rule.
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल एनी रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल, तो जैसे ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी। दूसरा रूल लगाएंगे कि कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर से होके जाती है तो वो सीधी ही चली जाती है। तो इस तरीके से ये दो रूल से हमने, उसके बाद ये डाइवर्ज हो रही है इसलिए हमें ये कहाँ देखेगी, पीछे। तो बिल्कुल मिरर के जैसे ही है इमेजेस बनानी। तो ये हमारी इमेज बन गई, वर्चुअल है और पोजीशन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड भी है। उसके बाद ऐसे ही आपने दूसरे केसेस करनी है। दिस इज़ f, दिस इज़ 2f। तो इसके बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज इधर की साइड बनती है। तो डिफरेंट रूल्स लगा के आपने जैसे मिरर में अपने करते थे वैसे ही करना है। उसके बाद ये टेबल आपने याद करना है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, f और लेंस के बीच में, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो साइज उसका, ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल आपने याद करनी। आफ्टर दैट इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, बीच में सेंटर में वो थिन होता है लेकिन कॉर्नर पे वो थिक होता है। तो इस तरीके से आपने इससे इमेजेस बनानी है। तो जैसे फर्स्ट केस है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो जब इन्फिनिटी पे होता है तो पैरेलल रेस आती हैं। पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉनकेव मिरर विल बिकम, ये कौन सी डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। तो ये भी ऐसे ही डाइवर्ज हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर। ठीक है, और साइज, पॉइंट साइज और वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट भी है नेक्स्ट केस ये वाला। ठीक है, मतलब 2f और f के बीच में। तो यहाँ पे अगर बनाएंगे तो पहले वैसे ही पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, और दूसरी हम भेजेंगे सेंटर के ऊपर, तो सेंटर वाली सीधी ही चली जाएगी। तो यहाँ पे दोनों क्रॉस हो रही हैं, मतलब ये पॉइंट पे क्रॉस हो रही हैं, तो दिस इज़ आवर ए डैश पॉइंट। तो हमारी इमेज कहाँ बनी है, O और F1 के बीच में, और ये छोटी है। तो ये टेबल आपने याद रखना है। उसके बाद साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज, जैसे हमने मिरर में किया था वैसे ही ये है। इसमें बिल्कुल सेम आपने जो है साइन कन्वेंशन लेनी है, वही वाली सेम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे डिस्टेंस, जैसे उसमें हम पोल से लेते थे, इसमें डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। उसमें हम जैसे जो पॉजिटिव एक्सिस थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, उसमें जो है राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन हम डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, लेफ़्ट वाले को नेगेटिव। इसमें भी हम अबव प्रिंसिपल एक्सिस के जो अबव डिस्टेंस होंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन बिलो होंगे उनको नेगेटिव। उसके बाद ये लेंस फार्मूला है, ये थोड़ा सा उससे अलग है क्योंकि उसमें मिरर फार्मूला था। मिरर फार्मूला में 1/v प्लस था 1/u, लेकिन इसमें 1/v माइनस 1/u है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सेम है, बस इसमें ये फ़र्क आ गया यहाँ पे। उसमें मैग्नीफिकेशन फॉर मिरर, उसमें फॉर्मूला था m इक्वल टू -v/u, लेकिन इसमें +v/u है। लेंस में याद रखना है अपने +v/u होता है और मिरर में -v/u, बाकी मीनिंग इसका सेम है। उसके बाद है बेटा पावर ऑफ लेंस, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ।
कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर, इसकी यूनिट होती है डायप्टर। इसमें हम फोकस को जो है रिवर्स करके देख लेते हैं, रेसिप्रोकल करके देख लेते हैं, वो उसकी पावर आ जाती है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास।